Hello everyone. I am Aman Agrawal, a student of Shri Govind Ram Siksa Institute of Technology and Science, and my enrollment number is 18 from section and third year. We have to understand the problem statement. So, the problem statement is as follows: like we have seen in many educational institutes, the teachers there share Google forms and other forms, and some students do not fill that form. So, teachers get the record that who are the total number of students and who are the students who have filled the form. Uh, in traditional in traditional things, they have to check manually that who have not filled the form, and they have to call them manually and message them or email them to notify them that they didn't fill the form. So my project is to basically create a web app for this, in which a user gives two Excel files. The first Excel file contains the total number of students who have filled who have filled the first Excel file actually contains the total number of students along with their mails and phone numbers, and the second Excel file contains the number of students or the students details who have filled the form. So we have to generate an Excel file of the students who haven't filled the form, and also we have to send uh, send or notify them via email or WhatsApp that they didn't fill the form. So next up, we have to understand what is the solution overview that I have designed for this problem. So first we need to understand what are the goals. So first we have to develop a web-based application that accepts two Excel files as input and compares the two Excel file and gives the output Excel file, and also send the reminders to those students who haven't filled the form or submitted their form. So the tech stack which I am going to use for this is Django. So Django is basically a web framework for Python to handle web requests and building basic web apps. So I think this is a perfect framework that can be used for this problem. And Django basically use Python as a backend programming language, and it uses HTML and CSS files for front end and to create a simple upload interface. And we can also use Bootstrap and Tailwind and other like UI enhancement tools to enhance our UI. And also I'm going to use libraries such as pandas, which are going to use for reading and processing Excel files. And then we are going to use Twilio. Twilio is basically a SMS sending or WhatsApp sending tool. So we are also going to use Twilio, and also we are going to use Django SMTP. So for sending the mails. So these are the tech stack which we are going to use in this project. So next we are going to understand how the Django works actually. So Django basically consists of four important files. First, models. Second, views. Third, URLs. And fourth, templates. Templates are basically HTML files on which our front end depends. And in HTML, I mean, we can also consider that this templates consist HTML and CSS files also, and everything what we need on the front end. Okay, so this HTML file sends a HTTP request. So HTTP requests basically are the requests we see on the search bar, that on certain websites that there are some websites which like consist of user, right? Then we are on the first user, then we go from user to the login page, right? So this URL basically handles this request, right? So this request is forwarded to the appropriate view, and we create view. And this is basically a very important file. This consists all the, you can say, the backend work that is going to that is happening in the backend side of the project. This contains all those operations. And then we have the models. So models is basically, you can say, a database file of Django which consists all the models. And it also, we can also define models like, suppose I am currently creating a showroom app. So in that, I'm
going to create models for, like, we are going to create vehicle, then we are going to vehicle image, then like certain models we can create. We can define also primary key and other foreign keys in this, and also can maintain the constraints in this. Okay, so views can read the models, and also after doing all this stuff, it finally responds to the HTML file and gives the output. Okay, so this is the basic flow chart, or we can say flow diagram of how the Django works. Again, it depends on models, views, URLs, and templates. These are the default files on which Django works. Other files like forms and decorators, these are the extra files we can use for our, we can say, to increase efficiency and everything. Okay. So now we are going to start our Django project. So first we have to install Django from which is a Python library. I have already installed the Django, so I will not run this command. Even if I run this command, so it will say that requirements already satisfied. So yeah, I don't have to install. Then I am going to start a Django. Start Django admin. Start project. Sorry for the typo again. Project, and whatever my project name. Suppose I am starting a form, then suppose checker. So I'm going to start the start project from like this. So as you can see, my Django project is completed. So I will open the folder of it. So this is the form checker. So yeah, this is the basic file or basic structure, and this is the structure that Django already creates. And now I'm again going to open terminal, and we are going to create an app now. Okay, in Django there are several apps that we create. So for that we are going to run the command Django admin. Sorry, Python manage.py start app, and whatever the app I am like creating. Suppose I'm creating form, so it will create a folder separate, as you can see, form. So this is the basic on which we are going to work. As I said, that views, models, and also we are going to create urls.py. Some dependencies does not create, we have to create it by manually. So this is the basic or main thing on which we are going to work, and these all are the admin sections. It's of no use in this project. Okay, so next we have to like we have to let the Django know that we have created an app. So for that we are going to the settings.py in the main form tracker, and in that we are going to type, where is the install templates, yeah. So in this we are going to type the name of the app that we have created. So in this case we have created tracker, so we have to add the name tracker in the installed app in settings.py, so to let the Django know that we have created a app. Okay, so next we are going to design our front end page. So I'm expecting that uh, like I learned HTML and CSS from YouTube, so I'm expecting that those who are watching this video already have an idea of HTML and CSS. I'm going to tell that how you can create templates and how and where you are going to store them. So the app that we have created using the start app, we are going to go there, and then we are going to create a new folder which names templates, and then in the templates we are going to create a subfolder tracker, and in tracker we are going to create a HTML file. So I have named it upload.html, since I'm going to uh, use it for the upload files and everything. Also you can say that these are the like uh, uh, already assigned names and already assigned rules to know the Django where are the files stored. So you have to create a tracker, you have to create a subfolder in your app
which names templates, and then in templates you have to again create a subfolder which is tracker, and in tracker you are going to like upload your HTML files or design your HTML files, and there the your Django knows how to now retrieve the HTML files. Okay, after we have created the templates and trackers and upload.html, so I'm expecting that you have created, and then we will go to the form tracker, the main admin app, and in that we are going to settings.py, and in that we are going to add this line static. Now see, what does static do? Static will go to the app, and static will find templates, and in templates it's going to get the name of tracker, and in that it is going to find your upload.html. So static does all the things like finding your templates, right? सो नेक्स्ट अपन अब करने वाले एच टी एम एल फाइल में, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आप लोगों को एच टी एम एल फाइल और सी एस एस फाइल का थोड़ा आइडिया होगा, थोड़ा नॉलेज होगा, थोड़ा भी होगा तो ये काम हो जाएगा पूरा। देन अब यहाँ पर अपन जिंजा टेम्पलेट्स यूज़ करने वाले, तो जिंजा टेम्पलेट्स बेसिकली क्या होता है, जिंजा टेम्पलेट्स एच टी एम एल में अगर कोई भी ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करना रहता है, तो अपन एच टी एम एल में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिंजा टेम्पलेट को यूज़ करते हैं, है ना। So for that, we are going to first include load static. So load static बताता है Django की यार अपन जिन्हें templates यूज करने वाले, देन इसमें अपन एक CRSF टोकन यूज करेंगे, है ना। तो CRSF टोकन बेसिकली प्रोवाइड करेगा Django को कि यार जितनी भी अपन फाइल्स HTML में अपलोड कर रहे हैं वो Django के पास भी चले जाए। सो इसके लिए इनपुट टाइप अपन ने फाइल रखा है, आईडी अपन ने टोटल स्टूडेंट्स और नेम टोटल स्टूडेंट्स दिया, ताकि अपन जो स्टाइलिंग है इनकी वो सब अपन कर सके। अगेन मैं स्टाइलिंग के लिए अलग से स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल नहीं बना रहा हूँ, मैं स्टाइलिंग इटसेल्फ HTML में ही कर रहा हूँ, ठीक है। देन इसका अपन ने एक्सेप्ट टाइप एक्सेल सी रखा है, ताकि अपन जो सिर्फ एक्सेल फाइल इसको डाल सके, और इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए ये रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैंने रिक्वायर्ड टैग यूज करा है इसमें, ठीक है। देन सेम अपन ने टोटल स्टूडेंट्स के लिए करा है, फिल्ड फॉर्म एक्सेल के लिए करा है, एंड अपन ने फिर उसको कंपेयर एंड डाउनलोड, एंड अपन ने एक सबमिट फाइल बना दी है। सो मैं आपको एक बार ये चला के बता देता हूँ। तो चलाने के लिए इसमें बेसिकली पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर का यूज़ होता है। सो अब इस पर क्लिक करेंगे, सो ये चल जाएगा। एज यू कैन सी अवर एच टी एम एल फाइल, ये सर ये पूरा खुल जाएगा, है ना। एंड इस पर अपन सिलेक्ट कर सकते हैं फाइल को अपनी, जो भी अपन बनाएंगे। इसमें टोटल फाइल्स, इसमें फील्ड जितने जिनने भरा है फॉर्म उनका फाइल, एंड कंपेयर एंड डाउनलोड करेंगे। तो अभी कंपेयर एंड डाउनलोड चलेगा नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स अपन ने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करी। तो दिस इज जस्ट एच टी एम एल और सी एस एस, और थोड़ा बहुत इसमें आप चाहे तो बूटस्ट्रैप या टेलविंड या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने वो करा नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये वाले प्रोजेक्ट में ये कुछ इतना यूज़ में है। सो दैट्स इट। पढ़ेंगे तो अब यहाँ से अपन यू आर एल डॉट पी वाई में जाएंगे, जो अपन ने ट्रैकर में मैनुअली बनाया है, और इसमें अपने को आफ्टर सबमिशन जो भी अपन यूआरएल्स को डालेंगे वो इस पे अपन क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे जो अपन सबमिट पर, तो ये पाथ जनरेट होगा, और ये पाथ अब जो है वो व्यूज डॉट पी वाई पे जाएगा, व्यूज डॉट पी वाई पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। एंड द पाथ दैट वी आर एडिंग इन द यूआरएल डॉट पी वाई, अपने को वही सेम पाथ जो एडमिन का, यानी कि फॉर्म ट्रैकर का जो यूआरएल डॉट पी वाई उसमें ऐड करना पड़ेगा। एक तो बाय डिफॉल्ट इसमें एडमिन ऑलरेडी एडेड रहता है, नेक्स्ट अपन एक ही बार में, मतलब एक ही कमांड से सारे जितने भी पाथ हैं उनको इंक्लूड करवा सकते हैं। सो उसके लिए अपने को कुछ नहीं करना, बस इंक्लूड ट्रैकर डॉट यू आर एल्स ये अपने को डालना है। ट्रैकर अपना ऐप का नाम है, तो ये आ जाएगा। ओके, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यू आर एल्स और व्यूज़ कैसे वर्क करता है। तो यू आर एल्स है, मैंने बताया आपको कि अपन मतलब यू आर एल्स पैटर्न इसमें डालेंगे, एंड वॉट एवर जो भी मतलब एक्स्ट्रा अपन चीज़ डाल रहे हैं। जैसे इसमें कैसा होता है ना कि सपोज कोई यूज़र है, उसको लॉगिन पे जाना है, तो जो भी उसका सर्च टैब रहेगा उस पे ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। लॉगिन से उसको यार साइन अप पे जाना है ना। देन साइन अप से वो कस्टमर डैशबोर्ड पे जाएगा। सो ये जितनी भी चीज़ें, ये सारी यू आर एल्स पैटर्न हैंडल करते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट कि यार यू आर एल पैटर्न है, सो ये सारी चीज़ें यू आर एल पैटर्न हैंडल करता है। एंड अरे, तो मैं प्रोजेक्ट बंद कर लूँ अपना।
एंड अगेन जो यूआरएल्स आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो एक कमांड में आप सारे जो भी आपका मेन जेंगो का प्रोजेक्ट है उसमें भी डाल देना. ओके, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी. देन जो यूआरएल्स है वो व्यूज डॉट कंपेयर एक्सेल पे कॉल करेगा. व्यूज अपनी व्यूज वाली फाइल रहेगी और कंपेयर एक्सेल उसमें एक जो भी फंक्शन रहेगा वो रहेगा, तो उस पे कॉल करेगा. और भी बहुत सारी अपन चीज़ें बना सकते हैं इसमें. ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज द कंपेयर एक्सेल एंड दिस इज द रिक्वेस्ट. अब ये जो रिक्वेस्ट है ये बेसिकली जनरेट कर रहा है आपका टेम्पलेट, है ना. और टेम्पलेट जो है HTML उसमें अपन ने ऑलरेडी CRSF टोकन डाल के रखा है. तो CRSF टोकन जो है उसके पास अभी आपके पास उसके पास अभी आपकी टोटल स्टूडेंट्स की फाइल है और फिल्ड फॉर्म की फाइल है. ओके, सो जो रिक्वेस्ट है वो अभी रेज करिए टेम्पलेट्स में. ठीक है, तो अब अपन रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट पे डालेंगे. ठीक है, अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट यानी कि सबमिट बटन अगर क्लिक हुआ है तो फिर अपन टोटल स्टूडेंट्स की पहले फाइल को गेट करेंगे जो कि रिक्वेस्ट के पास ऑलरेडी है. तो टोटल स्टूडेंट्स की फाइल अपन ने गेट करी, देन फिल्ड फॉर्म की फाइल अपन ने गेट करी. देन इसमें अपन पांडास की जो लाइब्रेरी वो यूज़ करेंगे. अगर आपके पास पांडास इंस्टॉल नहीं है तो आप डायरेक्ट इसमें कमांड डालिए पिप इंस्टॉल पांडास. ये पांडास बेसिकली जो एक्सेल फाइल्स रहती है उसको रीड करने के लिए यूज़ होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी रहती है. सो पांडास आप इंस्टॉल करिए. देन इसमें जो भी अपन रीड करेंगे उसको अपन क्या नाम है DF टोटल रीड में डालेंगे एंड फील्ड को अपन DF टोटल में डालेंगे. ये DF क्या होता है, जो भी फाइल डिस्क्रिप्टर रहता है उसको अपन DF बोलते हैं. तो अगर स्टूडेंट आईडी जो है वो डीएफ में नहीं है, अगर स्टूडेंट आईडी डीएफ में नहीं है तो अपन डालेंगे कि स्टूडेंट आईडी फाउंड नहीं हुई. और अगर ईमेल नहीं है तो अपन डालेंगे कि ईमेल फाउंड नहीं हुआ, है ना. क्योंकि अपन ईमेल और स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे ही ये डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट है जिसने फॉर्म फिल करा है, कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं करा है. सो नेक्स्ट अब अपन देखने वाले हैं कि वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है, सो उनको अपन बेसिकली ट्रैक करने वाले हैं. सो इसमें क्या करेंगे अपन, पहले तो DF नॉट फिल्ड नाम का एक कॉलम रो बनाएंगे जो अपन नई एक्सेल फाइल बनाएंगे उसके लिए. और उसमें अपन वो वाले स्टूडेंट्स को लाएंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल करा है. सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. दोज सो इन दिस वी आर गोइंग टू ट्रैक दोज स्टूडेंट्स who are in the total but are not in the field. सो इन स्टूडेंट्स को अपन इसमें लाएंगे. सो इसके लिए अपन ये नॉट इन का यूज़ करेंगे. सो इससे क्या होगा कि जिन्होंने जो टोटल में है लेकिन फील्ड में नहीं है वो वाले स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो DF नॉट फील्ड में आ जाएगी. सो नेक्स्ट अब सिंस अपने पास उन स्टूडेंट्स का डेटा आ गया जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है, सो अब उनको अपन प्रोसेस करेंगे. सबसे पहले अपन एक फॉर लूप लगाएंगे, है ना. और उसके बाद उन स्टूडेंट्स का जो डेटा है जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं करा है उनका पहले तो अपन मेल गेट करेंगे, देन फ़ोन नंबर गेट करेंगे. ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर्स है वो डायरेक्ट फ़ोन नंबर डाल देंगे. +91 जो है वो एक्सेल में सपोर्ट नहीं करेगा. तो टू यूज़ फ़ोन नंबर फ्रॉम 12 वी हैव टू ऐड अपेंड 91. सो अपन 91 अपेंड करेंगे, है ना. सो इसके लिए ये पूरा अपने को यूज़ करना पड़ेगा. देन अपने को सेंड मेल का जो फीचर है वो यूज़ करना पड़ेगा. तो उसके लिए सेंड मेल का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी SMTP में ऐसा कुछ रहता है जिसमें आपको पहले सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, देन उसका बॉडी डालना पड़ेगा. ठीक है, देन जो भी ईमेल आपका रहेगा, ठीक है, मतलब जिस ईमेल से आप भेज रहे हो वो, एंड देन स्टूडेंट का ईमेल जिस ईमेल पे आपको भेजना है वो वाला ईमेल इसमें रहेगा. ओके, सो अगेन मैं आपको अब सेटिंग्स डॉट पी वाई एक बार सेट करना सिखा देता हूँ. तो उसके लिए आपको सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाना पड़ेगा. ये बेसिकली SMTP के लिए यूज़ होगा. इसमें आपको आपका ईमेल बैकएंड होस्ट पोर्ट और ईमेल होस्ट यूज़र ईमेल जिस ईमेल से आप भेजना चाहते हो वो, एंड आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा. तो पासवर्ड के लिए आपको जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला पासवर्ड होता है वो डालना पड़ेगा जो कि आई गेस 12 उसका होगा, 12 लेटर्स का होगा. तो आपको वो डालना पड़ेगा. सो आई एम जस्ट फॉर द security purpose I'm not showing you that. Okay, सो अब मैं आपको जो हाउ टू सेंड व्हाट्सएप में आपको वो सिखा देता हूँ. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वही ट्विलो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो ट्विलो के लिए अगेन सेम आपको पिप इंस्टॉल ट्विलो ये करना पड़ेगा. देन आपको जो ट्विलो की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके जो आपका व्हाट्सएप
और एवरीथिंग है वो सबको आपको चीज़ करनी पड़ेगी। देन इसमें आपको ट्विलो अकाउंट एसटीडी जो आपकी व्यूज़ की फाइल है उसमें ही आपको वहाँ से एसआईडी टोकन और टोकन ऑथ टोकन मिलेगा, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा। एंड व्हाट्सएप नंबर आप बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने दीजिएगा, ठीक है? तो और इसके बाद जो भी आपका मतलब व्हाट्सएप रहेगा जिसको भी आपको भेजना है तो उसके लिए पहले तो आपको मैसेज जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है? सो मैसेज के लिए अगेन इसमें क्रिएट मैसेज का एक ऑप्शन होता है, सो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। बॉडी रहती है इसमें जिस भी ट्वेल्व नंबर व्हाट्सएप नंबर से आप भेज रहे हैं और जिसको आपको भेजना है वो आप भेजेंगे, ठीक है? और एक बार व्हाट्सएप मैसेज चले जाए तो आप ये मैसेज सेंड, ये आपका उस पर पॉपअप हो जाएगा। सो अगेन ये व्हाट्सएप का आपको इतना ही करना है। तो अगेन दिस इज़ अ ट्राई थिंग, अगर एक्सेप्शन कोई भी आता है तो ये प्रिंट कर देगा कि फेल टू सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ओके? So this is how we can send the WhatsApp message to everyone who haven't filled the form yet. नाउ अपन देखने वाले हैं कि कैसे अपन जो एक्सेल फाइल उसको जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले अपने को एक आउटपुट फाइल बाय डिफ़ॉल्ट बनानी पड़ेगी। दिस इज़ द, यू कैन से, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल फाइल। और अब इस एक्सेल फाइल में अपन राइट करने वाले हैं, तो उसका कुछ फॉर्मेट ऐसा होता है, ये फॉर्मेट आप पूरा पांडास की जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पे जाके पढ़ सकते हैं। तो इसमें इंजन अपन यूज़ करने वाले ओपन पाई एक्सेल। अगेन आपको ओपन पाई एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो उसके लिए वही अगेन पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल। ये बेसिकली यूज़ होता है जो भी आप एक्सेल फाइल में अपडेट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है? तो अपन जो आउटपुट फाइल अपन जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर राइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन पाई एक्सेल एज अ राइटर, है ना? और उसमें अपन राइट क्या करेंगे, जो भी अपन ने डी एफ नॉट फिल्ड, जहाँ अपन ने डिफरेंस निकाला है ना डी एफ नॉट फिल्ड का, ये वाला डिफरेंस, इसको अपन ऐसा कैसे इसमें राइट करने वाले, है ना? सो वी कैन से difference in the Excel file. Okay, so this is the total thing that is going to happen. Now अपन अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि मतलब कैसे आप मतलब जनरेट कर सकते हो। आउटपुट डॉट सीक जीरो रहता है, ये बताता है कि क्लोज द फाइल एक्सेल। एक्सेल फाइल अपनी क्लोज कर दिया, उसके बाद अपन जो है रिस्पॉन्स वो क्रिएट करेंगे। तो रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए अगेन आपको एच टी टी पी रिस्पॉन्स जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि अगेन आप इन सब के बारे में जाके इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पर पढ़ सकते हैं। देन अगेन ये आउटपुट डॉट रीड करेगा, ये जो भी आउटपुट फाइल अपन ने ऊपर जनरेट करी है उसको रीड करेगा एंड कंटेंट टाइप उसका डिफाइन करेगा जो कि स्प्रेडशीट रहेगा। एंड रिस्पॉन्स में ये अगेन स्टूडेंट नॉट फिल्ड डॉट एच टी एम एल डॉट एक्सएल एस एक्स, ये वाली जो फाइल है उसको जो आपका जो भी सिस्टम है उसमें इंस्टॉल कर देगा और ये रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स को। एंड ये रेंडर कर देगा वापस अपलोड डॉट एच टी एम एल, यानी कि वापस ही आपको जो आपकी मेन फाइल है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज हाउ योर प्रोजेक्ट विल इज गोइंग टू वर्क।
हम्म सो एज आपको मैंने बता दिया है कि कैसे मतलब सारी चीजें वर्क कर रही है, सो अपन एक बार के लिए डॉक्यूमेंटेशन पे वापस आ जाते हैं। तो एज आई सेड, दीज आर द टेस्ट केसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, जिसमें से फॉर्म सिर्फ अनन्या और चिरायु ने फिल करा है, एंड अमन और अनीश ने फॉर्म अभी तक फिल नहीं करा है। सो उनको मेल भी चले जाएगा एंड देन व्हाट्सएप रिमाइंडर भी चले जाएगा। सो अब नाउ अपन के फीचर्स पहले तो फीचर्स जो है वो इसका ये है कि एक्सेल कंपैरिजन हो रहा है कि जो भी जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ने फिल फॉर्म नहीं करा है उनको मतलब उनका एक अलग से एक्सेल फाइल आ रहा है, उनको मेल भी जा रहा है, उनको व्हाट्सएप भी जा रहा है, और ये जो है एक डाउनलोडेबल आउटपुट है, और डाउनलोडेबल के साथ ही शेयर और ट्रांसफरेबल भी है। So now what I have learned while creating this project. So as of course I have learned web development with Django, which is very helpful, and by the help of that I have also created my agile project. So again, I have learned how to use Twilio APIs to send mails, and also I have tried hands-on WhatsApp Business API, and then also I have learned how to use email integration in the Django, and also I have learned how to use or process files, Excel files, particularly using Pandas. And then again, automations and user experience. I have created a user-friendly HTML, CSS files. So so this is the final conclusion of my project. So yeah, so as you can see, I have completed the this project, and this project solves the problem statement that I had discussed uh, in the very beginning of this video.